तो टटाइज में ऐसा कहा गया है कि जब व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है तो कई चीजों का ध्यान रखना होता है। बहुत ही जनरल चीजें हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन टटाइज में मेंशन है तो मैं एक बार आपको बता देता हूं कि इसमें कहते हैं कि प्रातः भ्रमण करो चबाकर भोजन, इट्स मैंडेटरी। व्हेन यू बिकम ओल्ड, डू द मॉर्निंग वॉक or do the pranayama or yogasana or exercise and eat the food slowly. हमारे पास कई सारे ऐसे केसेस हैं, हमने पहले भी कई बार एक एग्जांपल डिस्कशन किया है कि एक हस्बैंड बड़ा हैरान है कि कब मेरी वाइफ कभी बीमारी नहीं पड़ती। वो चाहे रात को 2 बजे खाना खाए, चाहे रात को 1 बजे खाना खाए, कभी बीमार नहीं पड़ती। और मैं रोज 2 घंटा प्राणायाम करता हूं, एक्सरसाइज करता हूं, स्विमिंग करने जाता हूं, तो भी जरा सा गड़बड़ हुआ तो बीमार पड़ जाता हूं। So the person is telling my wife is never getting ill, even she is eating the food in the night 1 o'clock, even in the at the 12 o'clock in the night. Okay, then I asked, okay, I don't know, tell me what is the secret. मैंने उसको पूछा बताओ क्या सीक्रेट है। उसने कहा कि उसे खाना खाने में 45 मिनट लगते हैं। She eat the food in 45 minutes. In the 45 minutes, you will reach from बोरीवली टू थाने। आप बोरीवली से थाने पहुंच जाओगे और वहां खा के लौट भी आओगे, नहीं लौट के तो नहीं आ पाओगे। So in the old days, it's mandatory you eat the food very slowly, and every piece of the meal you should be very much aware for that. तो प्रातः भ्रमण और करो चबाकर भोजन, कम खाओ और गम खाओ। हमें कम खाना चाहिए, ये तो हम सबके लिए कहते हैं, लेकिन बुढ़ापे में ये बात बहुत कॉमन है कि बुढ़ापे में अगर आपने ज्यादा खा लिया पचेगा नहीं। यू विल नॉट एबल टू डाइजेस्ट द फूड if you are eating too much in the old age. So remember one thing, eat less. In the Ayurveda also it has been told that hit मिताहार कि कम खाना खाने से कभी हम बीमार नहीं पड़ते हैं, हम बीमार पड़ते हैं ओवर ईटिंग करने से। Okay, so control on your desire and eat less. कम खाना खाइए। Now it's written, सेवा के कार्य में तुम लग जाओ और उपकार में लग जाओ। पूरी जिंदगी इतना भागम भाग कर ली, कमा लिया, अब थोड़ा सा लग जाओ सर्विसेज में। Now do the services. It's the time of services. It is the time to giving back. Now, but we have seen because of the race, even the old person are having same business mentality like the youth. So in the old days, we should be do little changes. कहते हैं कि बुढ़ापा आएगा तो कष्ट तो होगा। When you become old, definitely there will be suffering, which is coming with the old age. Sometimes you will be having tooth pain. Whenever you are suffering with the tooth pain, जब भी आपको दांत दर्द हो बुढ़ापे में तो बोलो एक विकेट गिरने वाला है। एक विकेट गिरने वाला है, तो मतलब इतना एक फनी, मतलब इतना है, टेक योर लाइफ पॉजिटिवली, राइट? So in the same way, there are many things has been mentioned. The thing is this, when we become old, we should become very positive. We should help others. Do not expect anything from the kids because you have earned enough, and you should earn enough in the young age, so there will not be any dependency during the old age. इतना आप कमा लो कि बुढ़ापे में आपको डिपेंडेंसी ना रहनी पड़े। बस आप देना सीखो, देते रहो, धन ना हो तो प्यार लुटाओ। This is the recommended for the old age. Now, when the person suffering with the physical and mental disorder, even with the help of acupuncture, we can help the person. So let's see now here. Now we are coming back to our very big problem in the old age, that is cholesterol. बुढ़ापे में एक बड़ी common problem आती है जिसे हम कहते हैं cholesterol. So let's see here now.
It's a very big problem that is called cholesterol happening in the old days. आजकल तो जवानी में भी हो जाती है, बहुत यंग लोग भी इस बीमारी के शिकार हैं। तो जब भी किसी व्यक्ति को वृद्धावस्था में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, when anyone is suffering with the problem of the cholesterol, so this cholesterol is getting deposited. This cholesterol is getting deposited inside slowly, the deposition becoming more and more, and slowly the person is having too much blockages in the arteries. जब बुढ़ापा आता है तो हमारी आर्टरीज के अंदर, हमारी कैपिलरीज के अंदर बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। तो इसके लिए कहते हैं कि अगर जब भी ओल्ड एज में हमारे अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई हो जाए तो हम इन 4 बिंदुओं का प्रयोग करके हमें इसे कोलेस्ट्रॉल को ठीक करना चाहिए। So in the old days when we are having too much cholesterol and doctor are telling, oh, there is a blockage. There is a blockage. So do not worry. Just treat yourself with the help of these 4 points. अगर डॉक्टर ने कहा है कि भाई आपकी आर्टरी के अंदर कचरा जम रहा है, ब्लॉकेज हो रहा है और ज्यादा कचरा जम गया तो उठाकर आपको एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी में डाल दिया जाएगा। तो पहले से प्रिवेंशनरी आप ये ट्रीटमेंट करते रहिए। डू योर ट्रीटमेंट एज ए प्रिवेंशन एंड स्टिमुलेट दिस 4 पॉइंट: लिवर 3, स्टमक 36, LI 11 and pericardium 6. These 3 points are very wonderful. ये 4 points बहुत ही गजब के हैं। If you are stimulating these 4 points in the old days, then you can clean the capillaries. So let's see all the points one by one. तो सबसे पहले हम बात करते हैं liver 3 की। So first we are talking about liver 3. So look at here. You can see the location of the liver 3 here. ये हमारा, so liver meridian is starting from the great toe, then it is going like this, then liver meridian is passing like this. So this is the liver 1, this is the liver 2, and this is the liver 3. तो ये हमारा liver 1 है, liver 2 है, liver 3। इस तरह से हमारा liver meridian आगे की ओर जाता है। अब हम liver 3 के बारे में बात करते हैं। What is the importance of liver 3? So let's see here. So look at here. अगर हम बात करें liver meridian की, if we talk about the liver meridian, so liver is the wood element. Liver हमारा wood element है, and we can see the 5 sub element, that is liver 1, liver 2, liver 3, liver 4 and liver 8. हम liver को 5 ट्रांसपोर्टिंग पॉइंट में बांट सकते हैं। लिवर 1 इज द वुड पॉइंट, लिवर 2 इज द फायर पॉइंट, लिवर 3 विल बी द अर्थ पॉइंट, लिवर 4 विल बी द मेटल पॉइंट एंड लिवर 8 विल बी द वाटर पॉइंट। अगर हम लिवर को सब डिवाइड करें तो लिवर को भी हम 5 एलिमेंट में डिवाइड कर सकते हैं जिन्हें हम 5 ट्रांसपोर्टिंग पॉइंट कहते हैं। सो लिवर इज द वुड and these are the subdivision of the liver. Now what I want to tell you here, अब मैं आपको जो कहना चाहता हूं कि suppose what is happening, liver 1 is the wood point, liver 2 is the fire point and liver 3 is the earth point. earth, तो liver 3 हमारा earth point है। So liver 3 is the 3rd number point of the liver meridian, 3rd number point, and liver 3 is the source point of the liver. तो liver 3 हमारा तीसरे नंबर का पॉइंट है, क्योंकि पहले नंबर का पॉइंट liver 1 है, दूसरे नंबर का पॉइंट liver 2 है और तीसरे नंबर का पॉइंट liver 3 है। So liver 3 हमारा तीसरे नंबर का पॉइंट है, liver 3 हमारा सोर्स पॉइंट है। So liver 3 is the source point. So whenever you are stimulating the liver 3, just a 1 point, liver 3 is working in whole liver meridian, working in whole liver meridian because it is source point. ये हमारे liver का source point है।
अगर आपको सोर्स पॉइंट के बारे में पता हो, सोर्स पॉइंट वो बिंदु होते हैं जो हर मेरिडियन पर पाए जाते हैं। हर मेरिडियन का एक सोर्स पॉइंट होता है, और जब आप सोर्स पॉइंट को स्टिमुलेट करते हो तो उसका प्रभाव पूरे मेरिडियन पर पड़ता है। सोर्स पॉइंट उस मेरिडियन के मुखिया की तरह होता है। सो द सोर्स पॉइंट इज द मेन पर्सन ऑफ दैट फैमिली, and if you are stimulating the source point, it is influencing whole family. Now this is the earth point, so it will also balance the earth. It is also going to balance the earth, and earth means dampness, earth means humidity, earth means flame, and earth means turbidity, earth means dirtiness, and earth means cholesterol. तो अगर हम अर्थ की बात करते हैं, अर्थ का मतलब क्या है? अर्थ का मतलब है डैम्पनेस, ह्यूमिडिटी, फ्लैम, टर्बिडिटी, डर्टीनेस, कोलेस्ट्रॉल। हम लिवर 3 का बहुत प्रयोग करते हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए, क्योंकि लिवर 3 लिवर मेरिडियन का अर्थ पॉइंट है। और अब जब धीरे धीरे आप सीखेंगे कि जब हम लिवर 3 को स्टिमुलेट करते हैं, ये स्प्लीन से अपना संबंध बना लेता है, क्योंकि हम लिवर के अर्थ पॉइंट को स्टिमुलेट कर रहे हैं। So it is making the relationship with the spleen, and it is balancing the spleen, which is responsible to form the cholesterol. So liver 3 is the wonderful point. As per the master tomb, अगर हम master tomb की बात करें, as per master tomb, liver 2 and liver 3 are best point of heart and all heart related problems. मास्टर टूम के अनुसार अगर हम लिवर 2 लिवर 3 का प्रयोग करते हैं तो हार्ट और हार्ट रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को हम ठीक कर सकते हैं। सो लिवर 3 इज द वेरी गुड पॉइंट। आई विल शो यू द लोकेशन ऑफ लिवर 3। लुक इट हियर नाउ। 1 minute. So let's see here. अगर आप ये पैर देखोगे, look at my feet. So the liver meridian starting from here, liver 1, liver 2. Liver 2 is half chun from the babe margin. हमारे बेब मार्जिन से आधा चुन की दूरी पर लिवर 2 होता है। Now if we are keeping the 3 finger here, अगर यहाँ पर हमारा बेब मार्जिन है, वहां से अगर हम 3 अंगुल रख देते हैं और 2 चुन, so this is the location of liver 3. Liver 3 is the very good point for the cholesterol, लेकिन इसी बिंदु का दूसरा नाम है, ध्यान से सुनिएगा, इसी बिंदु का दूसरा नाम है हैप्पी काम। हैप्पी काम, हैप्पी काम का अर्थ है कि जब भी आप लिवर 3 को स्टिमुलेट करते हो तो आपका आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव होता है। योर रिलेशनशिप इज इंप्रूविंग विद योर पार्टनर। देयर विल बी लेसर फाइट्स, देयर विल बी लेसर कॉन्फ्लिक्ट, देयर विल बी लेसर quarrel, and there will be very peaceful life between you and your life partner. So this point is called happy calm point, the point who is bringing calmness in your married life. तो जब भी हम लिवर 3 को स्टिमुलेट करते हैं तो लिवर 3 हमारी मैरिड लाइफ में कामनेस लेके आता है, इसीलिए इस बिंदु को हम हैप्पी काम पॉइंट कहते हैं। दिस इज द वेरी गुड पॉइंट। अगर हम इस पॉइंट पर निडल लगाना चाहें, लुक एट दिस निडल। So we'll hold the needle and we'll put here. So look at here. This is the needle. हमने यहाँ पर needle लगाई, इसका नाम है liver 3. Liver 3 is the very good point for the cholesterol. As per the master tomb, it's a very good point for the heart, and this is a very good point for as a happy calm.
जो आपके जीवन में, आपके मैरिड लाइफ में कामनेस लेके आता है। तो अगर दो कपल के बीच में शांति पूर्वक जीवन ना हो, आप इस बिंदु को लगाकर उन दोनों के बीच में शांति पूर्वक जीवन वापस ला सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर द मेल जेनिटल्स एज वेल एज द फीमेल मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम। मेल के जेनिटल के लिए और द फीमेल के मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के लिए बहुत ही गजब का पॉइंट है। इसका प्रयोग हम करके फीमेल की मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट दैट इज कॉल्ड लिवर 3। और आपको यह पता होगा कि लिवर 3 आंखों के लिए तो गजब का है ही। लिवर 3 इज द वेरी गुड पॉइंट फॉर आईज। आंखों के लिए अच्छा है ही, क्योंकि हमने कहा कि लिवर 3 का मतलब है थर्ड नंबर का पॉइंट। लिवर 1 इज द फर्स्ट नंबर पॉइंट, लिवर 2 is the second number point, liver 3 is the third number point, and the third number point working in whole liver meridian। तीसरे नंबर का पॉइंट पूरे मेरिडियन पर काम करता है। तो लिवर मेरिडियन आंखों से संबंधित है, तो हमारी आंखों को ठीक करता है और आंखों को ठीक करता है। सो दिस पॉइंट इज वेरी 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 इफेक्टिव फॉर दीज प्रॉब्लम्स। नाउ अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं कि liver 3 is the very good point for male penile part, male genital part. If any male is suffering with any genital problem in the tip of penis, in the tip of penile part, so liver 3 is the very good point for this. So just understand the liver 3 is excellent point for the male genital part। लिवर 3 मेल जेनिटल पार्ट का बहुत ही गजब का पॉइंट है। तो वृद्धावस्था में भी या जवानी में भी जब भी किसी को स्क्रोटम में, टेस्टिस में, मेल जेनिटल पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है, पेनिस में कोई भी प्रॉब्लम होती है, पेनिस के जो एकदम सुपरफिशियल पार्ट है वहां की स्किन में कोई भी प्रॉब्लम होती है, लिवर 3 उस पर गजब का काम करता है। लिवर 3 इज वर्किंग वेरी नाइसली फॉर ऑल द जेनिटल प्रॉब्लम, वेदर इट्स द स्क्रोटल प्रॉब्लम और इट्स ए testicular problem or is the penis problem or the tip of the penis problem or the skin of the penis problem। तो लिवर 3 का ध्यान रखिएगा। तो लिवर 3 को हम हमेशा लगाते हैं, गुस्से को कम करने के लिए भी लगाते हैं, हार्ट को ठीक करने के लिए भी लगाते हैं और महिलाओं में मासिक को व्यवस्थित करने के लिए लगाते हैं। तो लिवर 3 हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ध्यान रखिएगा कि आपको पता होगा कि आजकल हम इतने सारे आलतू फालतू के चीजें अनजाने में खाते हैं। आलतू फालतू की चीजों का मतलब है कि आपने गेहूं खरीदे, लेकिन गेहूं उगाने वाले ने गेहूं में इतने पेस्टिसाइड डाले हैं, अब वो पेस्टिसाइड आपके वाइल्ड डक्ट में ब्लॉकेज पैदा करते हैं। सो द पेस्टिसाइड्स क्रिएटिंग द प्रॉब्लम इन द वाइल्ड डक्ट एंड द लिवर। सो लिवर 3 इज द वेरी गुड पॉइंट एंड इट्स क्लींजिंग ऑल द इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव्स and whatever coming with the diet in our body। हमारे शरीर में जो भी खाने पीने के माध्यम से पेस्टिसाइड आ जाते हैं, इंसेक्टिसाइड आ जाते हैं, हमारे हर चीज में प्रिजर्वेटिव पड़े रहते हैं, उन सबको ये क्लीन करता है, क्योंकि सारी की सारी चीजें हमारे लिवर को नुकसान पहुंचाती है। इतना ही नहीं कि हमें पता है कि लोग आजकल हेयर पर डाई कराते हैं, कॉस्मेटिक्स का प्रयोग करते हैं, लोशंस लगाते हैं, उनके माध्यम से भी जब हमारे शरीर में टॉक्सिन इकट्ठे हो जाते हैं। So liver 3 is the very good point for that. Remember this. So liver 3 is wonderful point for male, female, genital problem and heart. Remember, एक बात ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि heart is very deeply interconnected with sexual performance। आपने सुना होगा there is a one medicine, the name of that medicine is Viagra, which is very famous for the increasing the sexual time। Okay, but that medicine has been the scientists were preparing that medicine for heart। Accidentally it was not good for heart, but accidentally they found it is working for the sexual longevity। तो कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंटल कई सारी मेडिसिन ऐसी खोज ली जाती हैं कि इस व्याग्रा मेडिसिन को हार्ट के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन हार्ट पर इतनी अच्छी साबित नहीं हुई, लेकिन ये सेक्सुअल लॉन्गेविटी को बढ़ाने के लिए अच्छी साबित हुई।
लेकिन ध्यान रखिएगा इसके इतने नुकसान हैं कि जो व्यक्ति व्याग्रा नाम की मेडिसिन का लंबे समय तक सेवन करता है वो पार्किंसन या ब्रेन की गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है. The person might suffer with the Parkinson and the very severe types of brain disease if taking the medicine like the Viagra, because they are neurotonic, working directly on the brain. So remember one thing, liver 3 is the wonderful point for male, female both, for the genital problems, sexual problems, and remember the name of the liver point is happy calm. तो ये हमारा पहला बिंदु था. कोलेस्ट्रॉल के लिए हमें ये बिंदु लगाना होगा बुढ़ापे में, और हम बुढ़ापे में जब ये बिंदु लगाएंगे, वृद्धावस्था में जब बिंदु लगाएंगे तो क्या होगा कि लोगों के को प्रोस्टेट से वो लोग बचे रहेंगे, यूरिन की अलग अलग होने वाली प्रॉब्लम से बचे रहेंगे. इस तरह से दिस पॉइंट विल हेल्प. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. तो हमने लिवर 3 की बात कर ली है. अब हम बात करते हैं अगले बिंदु की, जिसका नाम है स्टमक 36. स्टमक 36, लेट्स सी नाउ. अब हम स्टमक 36 की बात करेंगे. Why the stomach 36 is good point for cholesterol? स्टमक 36, जब भी हम स्टमक 36 की बात करते हैं तो पहले मैं आपको इसकी लोकेशन दिखाता हूं. लेट्स सी द लोकेशन ऑफ स्टमक 36, देन आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस. लेट्स सी नाउ. सो लुक एट हियर इन दिस इमेज. अगर आप इस इमेज में देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप देख सकते हैं स्टमक 35 और स्टमक 36, देयर आर 2 पॉइंट्स. आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यहां पर 2 बिंदु हैं, एक है स्टमक 35 और एक स्टमक 36. मैं आपको पहले दोनों बिंदुओं की लोकेशन बताता हूं, फिर हम बात करेंगे कि स्टमक 36 कैसे कोलेस्ट्रॉल पर काम करता है, आखिरकार कैसे काम कर पाता है, और इसका कोलेस्ट्रॉल से क्या लेना देना है, विल डिस्कस. So first, let's see the location of stomach 36 because it's a very very important point. हमारे एक्यूपंक्चर के ट्रीटमेंट में ऐसा कोई दिन नहीं होता कि जब हम किसी एक ना एक व्यक्ति को स्टमक 36 का प्रयोग नहीं करते हों. So let's see the location of stomach 36 now. So look at here. तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टमक 35. सो दिस इज द नी, ये हमारा घुटना है, एंड दिस इज द आईज ऑफ द नी, ये घुटने की आंख है, वी कैन सी. एंड दिस द लेटरल आई, दिस द मीडियल आई, ये अंदर की आंख है और ये बाहर की आंख है. सो दिस द लेटरल आई, दिस इज कॉल्ड स्टमक 35. इसे हम स्टमक 35 कहते हैं. स्टमक 35, as per the master tongue, stomach 35 is the very good point for lips. ये ओठों के लिए बड़ा ही गजब का बिंदु है. अगर कभी भी किसी को ओठों की कोई भी प्रॉब्लम हो, ओठ ड्राई हो गए हों, ओठ फट गए हों, ओठों में कोई भी प्रॉब्लम हो, हम स्टमक 35 का प्रयोग करके ठीक कर सकते हैं. इतना ही नहीं, ओठों पर सफेद दाग या लिकोडर्मा की प्रॉब्लम हो गई हो तब भी हम इसका प्रयोग करते हैं. So we are using this stomach 35 for the lips as per the master tongue. But our focus is not the stomach 35. Our focus is stomach 36. अभी हमारा फोकस स्टमक 36 है. तो स्टमक 35 से अगर हम 3 चुन नीचे जाते हैं, if we are going 3 चुन down from the stomach 35. So we are reaching on the stomach 36. अब हम स्टमक 36 पर पहुंच जाते हैं. Now we are reaching on the stomach 36. Okay, so let's see now. हम जैसे स्टमक 36 पर पहुंचते हैं, so this is the bone, और बोन से 1 चुन लेटरल, ये हमारे स्टमक 36 की लोकेशन है. Now स्टमक 36 को हम स्टीरॉइड पॉइंट भी कहते हैं, and whenever we are treating this point, stomach 36, look at here. This is the stomach 36.
जब भी हम स्टमक 36 को ट्रीट करते हैं तो हमारे शरीर में इतनी ऊर्जा बढ़ती है जैसे कि घोड़े के अंदर ऊर्जा पाई जाती है, लाइक द हॉर्स। तो इस बिंदु की तुलना हॉर्स से की गई है कि जब इस बिंदु को आप ट्रीटमेंट देते हो तो आपके शरीर में इतनी ऊर्जा बढ़ती है जैसे कि घोड़े के अंदर ऊर्जा बढ़ती है, और इस बिंदु को ट्रीट करके आप घोड़े की तरह ऊर्जावान हो जाते हैं और बहुत लंबी दौड़ लगा सकते हैं। So stomach 36 is the very good point for improving the energy, for improving the vitality in the human body. कोरोना के प्रोटोकॉल में हमने बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि आपको कोरोना जैसी कोई बीमारी ना हो तो आप रोज इसे moxibustion करिए. Then you have to do the moxibustion to this point. When we are doing moxibustion on the stomach 36, so this is removing unwanted cholesterol, unwanted turbidity, unwanted dampness, unwanted dirtiness from the body. जब हम इस बिंदु को moxibustion करते हैं तो हमारे शरीर में से फालतू की गंदगी को हटाता है और हमारे शरीर को स्वच्छ बनाता है, क्लीन करता है. So it's doing cleansing of the human body. So I will recommend you can do the moxibustion here, or you can put the needle here to remove the unwanted cholesterol from the human body. तो ये हमारा दूसरा बिंदु हुआ जिसे हमने कहा स्टमक 36. तो हमने दो बिंदु की बात कर ली, एक तो लिवर 3, ये देखिए लिवर 3, और हमने दूसरे बिंदु की बात करी जिसका नाम है स्टमक 36. हम दोनों पैर में बिंदु लगाएंगे. We will put these 2 points in both the leg. Now, next 2 points will be in the arm. अब अगले दो बिंदु हमारे आर्म में होंगे. चलिए अब हम आपको आर्म के पॉइंट दिखाते हैं. Let's see now. अब हमारा अगला बिंदु होगा जिसका नाम है LI11. LI11 हम हर बार देखते रहते हैं. इट्स अ वेरी फेमस पॉइंट LI11. LI11 हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का बड़ा ही बेहतरीन पॉइंट है. LI11 हमारे शरीर में से गर्मी को निकालने वाला एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है. सो LI11 इज हियर. दिस इज द लोकेशन ऑफ LI11 ऑन द लेटरल क्रीज. ये हमारा LI11 है. इसको भी हम आराम से निडल लगा सकते हैं. लोकेट हियर. दिस इज द लोकेशन ऑफ LI11 ऑन द लेटरल क्रीज. अगर आप किसी भी व्यक्ति को LI11 और स्टमक 36 लगाते हो तो ये दो बिंदु हमारे शरीर में ऊर्जा को बढ़ाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु माने जाते हैं. सो दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी एक्सीलेंट पॉइंट हु आर रेजिंग द ची इन द बॉडी. सो दिस इज द LI11. ये हमारा अगला बिंदु होता है. LI11 को कहते हैं कि शरीर में से फालतू की गर्मी, शरीर में से फालतू की गंदगी को निकालने वाला लार्ज इंटेस्टाइन का पॉइंट. So this is the LI11 and the final point will be pericardium 6. बस ये बिंदु लगाने हैं. Pericardium 6 is located just 2 chin proximal. हमारे कलाई से बस 2 chin proximal होता है. इसे हम कहते हैं pericardium 6. इसका हम डेमोन्स्ट्रेशन पहले कर चुके हैं कि इसको निडल कैसे लगानी है. ओके, आपने pericardium 6 को लगा दिया. Just putting the pericardium 6. ये 2 chin proximal होता है. बस इन बिंदुओं के माध्यम से आप कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हो. तो हमने सिर्फ 4 बिंदुओं की बात करी है. लुक एट हियर. So this is the location of pericardium 6, right? So pericardium 6, LI11, stomach 36 and लिवर 3. वंडरफुल पॉइंट. आप हर ओल्ड व्यक्ति को, चाहे उसे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो या ना हो, आप ये 4 बिंदुओं पर ट्रीटमेंट जरूर दीजिए. क्योंकि जब आप इन 4 बिंदुओं पर ट्रीटमेंट दोगे तो आप देखोगे उसकी सारी की सारी आर्टरीज क्लीन हैं और उनके अंदर कोई कचरा नहीं है. नहीं तो क्या होता है, अभी मैं आपको बताऊं, हमारे पास एक पेशेंट आया करते हैं कभी कभी ट्रीटमेंट के लिए. सडनली एक दिन उनको हल्का सा कुछ तकलीफ हुई, गैस हुई और छाती में दर्द हुआ. फिर उनको एंजियोग्राफी करी गई और
थोड़ा ब्लॉकेज निकला और सडनली डॉक्टर ने कहा एंजियोप्लास्टी करना होगा। ये दिस इज अ वेरी कॉमन स्टोरी। So for the every old person, not only old person, everyone who is more than 40 years, should stimulate these points at least once in 15 days. At least once in 15 days. आप इन बिंदुओं को कम से कम 15 दिन में एक बार स्टिमुलेट जरूर करिए। कौन से बिंदु हैं? LI11, पेरिकार्डियम 6, स्टमक 36, लिवर 3 और सारी कैपिलरीज को एकदम पेटेंट रखिए, मींस ओपन रखिए। देयर विल नॉट बी एनी ब्लॉकेजेस देयर। गॉट इट? थैंक यू। सो नाउ विल प्रोसीड अहेड। एक बार मैं आपको वापस 4 पॉइंट दिखा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। So it's our responsibility to spread the awareness. The meaning of awareness means even the person is not suffering with the problem, so take the treatment precautionary. व्यक्ति को भले तकलीफ ना हो, फिर भी वो प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट ले। और अगर आप मैग्नेट लगाते हो या मेथी के दाने लगाते हो तो आप समझिए कि किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। No one should object if you are just putting seeds, right? So if you are putting the seeds, then you can give at least 5 to 7 days treatment every month, even minimum 5 days treatment every month, precautionary, if the person is having no any problem. So now this high cholesterol protocol completed. अब हम आगे बढ़ते हैं। Let's see now, proceed now. अब हम आगे की बात करते हैं कि कई बार क्या रहता है कि हम देखते हैं कि ओल्ड एज में लोग परेशान हैं। किससे? डाइजेशन से। The weak digestion in the old age is the very very common problem. बुढ़ापे में पाचन का कमजोर होना ये बड़ी ही एक कॉमन सी प्रॉब्लम है कि खाना पचता नहीं है। हालांकि ये प्रॉब्लम तो जवानी में भी हो सकती है, एनी टाइम हो सकती है, लेकिन बुढ़ापे में तो बहुत ही कॉमन है कि खाना पचता नहीं है। The person is not able to digest the food in the old age. It's a very very common problem. So let's see how to treat it. अब इसे हम कैसे ठीक करें? तो सबसे पहले आप देखिए, इसमें हमने लिया है पेरिकार्डियम 8. First we have taken the pericardium 8 point. I would like to tell you about the pericardium 8 because this is a very wonderful point. Let's see now. आप मेरे हाथ में देखिए। तो पेरिकार्डियम 8 को देखने के पहले अपने दिमाग में पहले पेरिकार्डियम 8 के बारे में एक चीज बना लीजिए। पेरिकार्डियम 8 is the master point of each and every veins of the human body. हमारे शरीर की जितनी भी सिराएं होती हैं, जितनी भी सिराएं यानी सिराएं veins, the meaning of veins, who is carrying the impure blood. The pericardium 8 is the master point of all the veins, right? Even many scholar has putting pericardium 8 for artery and veins both. आप ध्यान रखिएगा कि हमारे शरीर में वेन्स का काम है, बहुत बड़ा काम है। वेन्स का काम है कि जैसे आपने खाना तो बना लिया और खाना बनने के बाद आपने कुछ चीजों को डस्टबिन में डाल दिया, कुछ धूल इधर उधर उड़ा दी, उसको साफ करना भी बहुत जरूरी है। इट्स अ मैंडेटरी पार्ट आफ्टर कुकिंग द मील, after eating the meal, whatever left over, like the remaining part which you have put in the dustbin, cleansing of that part is mandatory. So pericardium 8 is the very good point for helping for the cleansing of blood because it's a master point of vein. And we know many persons suffering with the varicose vein. Varicose vein is a very common problem and different types of vein problem. कभी कभी वेरिकोज वेन हो जाती है और वेन की कितनी प्रकार की प्रॉब्लम होती हैं। उन सभी वेन्युअल प्रॉब्लम्स के लिए पेरिकार्डियम 8 इज द वेरी गुड पॉइंट। और अब एक चीज और, आपको पता होगा कि हमारे शरीर में एक साइकिल होती है जिसे हम कहते हैं ऑर्गन क्लॉक साइकिल। कितने लोगों को पता है ऑर्गन क्लॉक साइकिल के बारे में?
How many of you knows? Okay. So organ clock cycle कहाँ से स्टार्ट होती है? लंग से स्टार्ट होती है. लंग, large intestine, stomach, spleen. Okay. So lung, large intestine, stomach, spleen. Let's see now. Maximum of you might be knowing that. So organ clock cycle बताइए. आप लोग बताते जाइए, मैं लिखता जाता हूँ. Keep on writing. I will write. I will see your answer and I will write. Organ clock cycle. So lungs, lung, large intestine, stomach, spleen, heart, small intestine, urinary bladder, kidney, pericardium, triple warmer, gallbladder, and the liver. Okay. Now there is a rule that is called midnight rule. Midnight rule. Or the other name of this rule is organ clock opposite time. Organ clock opposite time. Means organ clock opposite time means the timing of stomach is morning 7 to 9 AM. हमारे स्टमक का टाइमिंग होता है सुबह 7 से 9. The timing of pericardium is evening 7 to 9 PM. So as per the midnight rule, these both organs are interconnected. So stomach and pericardium are interconnected and they will affect each other, और वो एक दूसरे को प्रभावित करेंगे. यही कारण है कि जब आप पेरिकार्डियम 6, पेरिकार्डियम 8, पेरिकार्डियम के पॉइंट्स को यूज करते हैं तो वो आपके डाइजेशन पर काम करते हैं, और जब आप स्टमक के पॉइंट को का प्रयोग करते हैं जैसे कि स्टमक 36, स्टमक 40, तो वो आपके पेरिकार्डियम और हार्ट पर काम करते हैं. So the pericardium 6 is the very good point for the digestion. Even the pericardium 8 is the very good point for the digestion, right? So as per this rule, the pericardium 6 and the pericardium 8 are very good point for digestion. हमारे पाचन संस्थान के लिए ये दोनों बहुत ही गजब के बिंदु हैं, हमारे पाचन को इम्प्रूव करते हैं. So this is the concept number 1. तो अगर आप इस प्रोटोकॉल में देखेंगे, हमने इसमें लिखा है pericardium 8. We can also add here pericardium 6. So the pericardium 6 and the pericardium 8 are a very good point to improve the weak digestion. हमारे पाचन को इम्प्रूव करने वाले गजब के पॉइंट हैं. और इसके अलावा अब हम देखते हैं, let's see the stomach 25, stomach 25 and the stomach 36. जब भी किसी को पाचन की कमजोरी होती है, हम इन दो बिंदुओं को जरूर यूज करते हैं. लेट्स सी दीज 2 पॉइंट. इन दोनों पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे. बताइए, व्हाट इज द स्पेशलिटीज ऑफ स्टमक 25? स्टमक 25 के बारे में कुछ बताइए कि आखिरकार ये बिंदु क्यों लगाना चाहिए. ये हमारी नाभि है. नाभि के लेवल पर स्टमक 25 होता है. एट द लेवल ऑफ नेवल वी आर हैविंग स्टमक 25. हमारे नाभि के लेवल से ये 2 चुन की दूरी पर पाया जाता है. इट्स ए 2 चुन अवे फ्रॉम द नेवल. सो वी कैन कीप द 3 फिंगर एंड वी कैन मेजर इट. अगर हम नाभि से 3 अंगुल रख दें, 1, 2 and 3, then we can measure stomach 25. नाभि से 3 अंगुल की दूरी पर स्टमक 25 होता है. अभी हम बात करेंगे कि इसके बीच के भी कुछ पॉइंट होते हैं जो बड़े गजब के होते हैं.
So stomach 25 is the alarm point of लार्ज इंटेस्टाइन, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का अलार्म पॉइंट है। चलिए बताइए कि क्या कोई बता सकता है कि एक कोई ऐसा बिंदु, कोई गजब का बिंदु जो नाभि और स्टमक 25 के बीच में होता है? एनीवन? द वेरी स्पेशल पॉइंट who is available between the navel, not the name. Very special point, very special, highly special. नाभि से लेकर स्टमक 25 के बीच में कभी कभी हमें एक गांठ और लंप जैसा मिलता है। आप नाभि से 1.5 चुन की दूरी पर जाओगे और बीच में से दबाते दबाते जाओगे तो बीच में आपको एक गांठ जैसी मिलेगी, लंप जैसा मिलेगा। बताइए वो लंप का क्या इंपॉर्टेंस है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट लंप? तो हम क्या करते हैं, नहीं, नाभि से स्टमक 25 के बीच में ही, जैसे ये मेरी नाभि है, नाभि से मैं स्टमक 25 तक जा रहा हूं और बीच में मुझे एक लंप मिलेगा, गांठ मिलेगी। आई विल फाइंड वन लंप और नोड्यूल। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? दैट इज कॉल्ड सुगर लंप। सुगर लंप, sugar lump. And the sugar lump is very good for the diabetes. So whenever you are going from the navel to the stomach 25, keep on pressing and find out the sugar lump. Find out the sugar lump. Let's see now. Let's see now in this image. I'm telling this, what we have to do. When from the navel, you are going to the stomach 25, in this route, somewhere, maybe here, or maybe here, somewhere, you are finding one lump. This lump is called sugar lump. And when you are doing the acupressure on this lump, it is helping in the diabetes. It is helping in the diabetes mellitus. So remember, this area is very much important. So stomach 25 is the alarm point of the large intestine. So it's a very good point. Okay. So this lump is available only in the left side, just in the left side. Just in the left side. This lump is found. Lump. This is called sugar lump. So let's see other image. चलिए मैं आपको एक दूसरी इमेज दिखाता हूँ. Let's see now. Suppose this is the human body. Navel, stomach meridian. Okay, so this is the stomach 25, and this is also the stomach 25, and this is the navel. Right now, I told you the sugar lump will be here. Here will be sugar lump. Okay, tell me. Again, if you find the one lump in the right side, if there is a lump in the right side, अगर आपको यही lump right side में मिलता है, what is the meaning of this and in which condition we are going to use it? बताइए कि लेफ्ट का छोड़ दो, लेफ्ट का तो डायबिटीज का हो गया। अब अगर हमको राइट साइड में लंप मिलता है, राइट साइड में, no, this lump is the sugar lump. This lump is showing the whether the person is having diabetes or there might be diabetes in the future. There will be some problem in the future connected with the diabetes. Tell me, if this lump is in the right side,
between the navel and the stomach 25. What this lump is doing? Okay, this lump might be there and might not be there. ऐसा जरूरी नहीं कि हो हर किसी को। ये लंप हो सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों बातें हैं। नाउ अगर किसी को राइट साइड में लंप है, इसका मतलब है दिस लंप इज कॉल्ड एड्रीनल lump. Adrenal is the gland that is called emergency gland. If you are always stressful, if you are in the always hurry and curry and worry, and your adrenal gland is getting fatigued, अगर आप हमेशा तनाव से घिरे हुए रहते हैं और काम करते करते हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आपकी एड्रिनल ग्लैंड थक जाती है कि जैसे आपको इमरजेंसी हुई तो आपने दौड़ लगाई, अभी थके हुए हैं लेकिन फिर से इमरजेंसी हो गई, फिर दौड़ लगाई। अब आप भी कितना दौड़ लगाओगे? दौड़ लगाते लगाते इतना थक जाओगे, फिर कितने भी इमरजेंसी आएगी, फिर आप बोलोगे अब ताकत नहीं है। सो यू कैन रन लिटिल, if emergency you can run again, if emergency you can run again, but at one point you will get tired, then you will tell no, I cannot run anymore now, I am tired. So that is called adrenal fatigue. Even in the emergency you will not run. So when the person having too much stress, worry, anxiety, so there is a lump in the right side, तो उसको दबाओ, एक्यूप्रेशर करो, उसको डिसॉल्व करो, उसको दबा कर एक्यूप्रेशर करके डिसॉल्व करके आप उस व्यक्ति की एड्रिनल ग्लैंड को ठीक कर सकते हो और उसका इमरजेंसी सिस्टम आप ठीक कर सकते हो। सो इफ यू प्रेस दिस लंप यू कैन वर्क ऑन द एड्रिनल ग्लैंड, राइट। नाउ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू हियर। अब मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, सी डाउन। So when we look at the navel, जब भी हम नाभि को देखते हैं, let's see now. Navel is the very important part of the human body. नाभि हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। So this is the navel. Now, there are 4 points around the navel. There are 4 points around the navel. नाभि के चारों तरफ 1.5 चुन up, 1.5 चुन down, 1.5 chun right, and 1.5 chun left. And sometime one chun up, one chun down, one chun right, and one chun left. These 4 points are called vitamin points. Vitamin points. इन 4 बिंदुओं को हम कहते हैं vitamin point. Most of the time it is 1.5 chun. हमारे नाभि के चारों तरफ पाए जाने वाले 4 बिंदु हैं जिन्हें हम विटामिन पॉइंट्स कहते हैं, विटामिन के पॉइंट्स कहते हैं। अगर आप ये 4 बिंदुओं को लगाते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन की मात्रा बढ़ती है। एक्यूपंक्चर में ऐसा माना जाता है कि नाभि, नेवल इज द ग्रेट रिजर्वर ऑफ द एनर्जी, ग्रेट reservoir of energy. So the vitamin points are around the navel. Vitamin points are around navel. So this is the concept number 1. Now concept number 2. Let's see once again. This is the image. नाभि से 1 चुन ऊपर एक बिंदु होता है जिसका नाम है CB9. नाभि से दिस द 1 चुन अप.
नाभि से 1.5 टून डाउन एक पॉइंट होता है जिसका नाम है CB6. दिस इज 1.5 टून डाउन, right? So if we are going down, so this is the vitamin point, mainly vitamin point. ये नाभि से अगर हम 1.5 के नीचे जाते हैं तो CB6 is the vitamin point. So whenever we are stimulating the CB6, it is improving many vitamin in the human body. हमारे शरीर में बहुत सारे vitamins को बढ़ाता है. Now if we are going up, bunching up on the CB9, CB9 is the very excellent point for expelling unwanted deposits in the body. Unwanted deposits in the body. हमारे शरीर में जब फालतू का डस्टबिन भरा रह जाता है और हम उसे बाहर फेंक नहीं पाते तो CB9 उसका मुख्य बिंदु है. So CB9 is the very good point if you want to expel unwanted deposits, if you want to expel unwanted water retention, if you want to expel unwanted deposited swelling, retention, flame, dampness. हमारे शरीर में आपकी मान लो शरीर की डस्टबिन भरी हुई है लेकिन कचरा बाहर फेंक नहीं पा रहे हो. So CB9 is the wonderful point for expelling any types of deposits from the body. आपको ध्यान होगा कि आपको कभी भी लगे कि शरीर में कुछ भी भर गया है, कुछ भी, आप धीरे धीरे समझेंगे कि ह्यूमिडिटी बढ़ गई है. CB9. पानी भर गया, सूजन आ गई, CB9. If there is a deposition of the water, retention of the water, CB9. Deposition of the dampness, cough, phlegm, CB9. CB9 is the wonderful point who expel all unwanted deposits from the body. Why? What is the reason? As per the deeper concept, CB9 is connected with the hypothalamus of the brain. CB9 का संबंध हमारे ब्रेन के hypothalamus से होता है और इस कारण से hypothalamus is the part of the brain who is controlling water metabolism. और hypothalamus का काम है हमारे शरीर की water metabolism को कंट्रोल करना. कभी किसी को पैरों में सूजन है, आप CB9 लगा देना. घुटने में सूजन है, CB9. चेहरे पर सूजन है, CB9. घुटने में पानी भर गया, CB9. The water retention in the knee, CB9. Water retention around the ankle, CB9. Water retention anywhere, swelling anywhere in the body, CB9. Never forget CB9. It's an excellent point. And if you want to increase the vitamin, CB6. CB6. So navel is a very important organ. If we go up, CB9. If we go down, vitamin point, CB6. If you go left, sugar lump. If you go right, adrenal lump or the stress lump. So navel is a very wonderful organ. So what I am suggesting everyone, if someone is old, you can do the moxibustion around the navel. आप उसके पाचन को ठीक करने के लिए नाभि के आसपास थोड़ा moxibustion जरूर करिए. नीचे CB6 भी स्टिमुलेट हो जाएगा, चारों तरफ के विटामिन पॉइंट भी स्टिमुलेट हो जाएंगे. अगर कहीं थोड़ा बहुत अनवांटेड डिपॉजिट्स पड़ा होगा ऊपर से निकल जाएगा. So always do moxibustion minimum 3 to 5 minutes to the old person on the navel region for making digestion stronger. उनके पाचन को ठीक करने के लिए आप नाभि के आसपास moxibustion जरूर करिए. नीचे CB6 तक जाइए, राइट साइड में स्टमक 25 तक जाइए, लेफ्ट साइड में भी स्टमक 25 तक जाइए और ऊपर CB10 तक जाइए. लेट्स सी नाउ हियर. Once a week is very good. Let's see. So let's see here. So this is the navel or the CB8. So when you're doing moxibustion, go till the 1.5 tune means CB6. On the right side, go till the stomach 25. On the upper side, go till the CB10. And even on the other side, go till the stomach 25. So stimulate stomach 25
stimulate CB6, stimulate CB10, and do not forget all around the navel, all around the navel. अगर आपने इतना कर दिया तो डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा, लेकिन साथ में हम स्टमक 36 को भी हम मॉक्सिवेशन करते हैं. वी ऑल्सो स्टिमुलेट द स्टमक 36, जो मैंने भी आपको डेमोन्स्ट्रेट किया था. स्टमक 36 is the distal point of abdomen. Stomach 36 is the distal point of digestion. ये हमारे पाचन का डिस्टल पॉइंट है, स्टमक 36. तो हम इतने सारे स्टमक के पॉइंट लगाएंगे और एक हम स्टमक 44 भी लगा देंगे. स्टमक 44 इज द डिस्टल पॉइंट इन द स्टमक मेरिडियन. हमारे स्टमक मेरिडियन में पाए जाने वाला एक बहुत ही शानदार डिस्टल पॉइंट है जो गैस, एसिडिटी, बर्पिंग आदि को ठीक करता है. So stomach 44 working on the gas, acidity, burping and all. It's a wonderful point. So stomach 25, stomach 26, sorry, stomach 36, stomach 44. These are the excellent point which we have to stimulate for the old person. Okay. और नाभि के आसपास हमने आपको बताया around the navel, CB6, CB10 we have to stimulate, plus navel region, plus all vitamin points, all vitamin points. आपको इतने पॉइंट को स्टिमुलेट करना होगा, फिर आप देखेंगे कि उस व्यक्ति का पाचन भी सुधरेगा और इसके अलावा उस व्यक्ति के अंदर ताकत, स्फूर्ति भी आएगी. एक्यूपंक्चर में कहते हैं कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो सारी ऊर्जा को सिर्फ वो नाभि से ही प्राप्त करता है. तो नाभि के पास जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो पहले तो उसको बड़ी कठिनाई होती है, एकदम से उसे नाक से सांस लेनी पड़ती है. शुरू में तो बड़ी कठिनाई होती है क्योंकि अभी तक तो सारा पोषण नाभि से मिलता था और एकदम से उसे सांस लेना पड़ती है. सो व्हाट इज हैपनिंग? प्रीवियसली इन द मदर वॉम्ब द fetus was taking the energy from the navel, but when taking the birth suddenly he is sucking and taking the breathing from the nostrils. So even after the birth, throughout the life, the navel is always very having tremendous energy. If you see from the energy eyes, navel is always bright. अगर आप ऊर्जा की आंखों से देखेंगे तो नाभि हमेशा एक चमकता हुआ सितारा जैसा होता है. एक्यूपंक्चर में कहते हैं कि नेवल इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ युआन ची. युआन ची मतलब नेवल के पास हमारी जन्मजात ऊर्जा पूरी जिंदगी भर पाई जाती है, पूरी जिंदगी भर. तो अगर आप नाभि में रोज सिर्फ रात को सोते समय कोकोनट ऑयल डाल के सोते हो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी बनी रहती है. Just putting the coconut oil in the navel will make you energetic. Why? Because navel is the real source of yuan qi. Yuan qi means original qi, which is we are carrying from the birth. जो जन्म से हम कैरी करके लाते हैं. हमारा कॉर्ड भले माँ से कट गया, लेकिन all the times energy will be there. So let's come back here. हम कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल डाल सकते हैं, हम कैस्टर ऑयल डाल सकते हैं. कहते हैं कि अगर आप नाभि पर तेल लगाते हो तो आपके ओठ गुलाबी हो जाते हैं. अगर आप नाभि में कैस्टर ऑयल डालते हो तो आपका फीवर उतर जाता है. सो नेवल इज द ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी. लेट्स सी नाउ इन दिस इमेज नाउ. सो लुक एट हियर. तो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी पेरिकार्डियम 6 एंड द पेरिकार्डियम 8. देन आई टोल्ड यू CB6, CB10, vitamin points plus four points all around navel. Plus we have seen stomach 25 and the stomach 36 as a distal point.
हमने एक पॉइंट और ऐड किया था जिसका नाम है स्टमक 44. Stomach 44. Now the final, we have taken one more point, that is CB12 and CB30. CB12 and CB30. Now regarding the CB12, I would like to tell you about the CB12. CB12 हमारे पाचन संस्थान का एक बहुत ही शानदार बिंदु है. CB12 is the very good point for each and every problem which is connected with the digestion. CB12 is the front view point of the stomach. So CB12 is the front view point or the alarm point of the stomach. तो हम CB12 का भी प्रयोग करते हैं because this is the problem of the stomach, and also we are using the CB13 because CB13 is pushing the food downward, so helping in the digestion because it is creating downward peristalsis movement. So CB13 become very good point. तो इस तरह से हमारा जो फाइनल प्रोटोकॉल बनेगा. So what will be our final protocol? Let's see now. So final protocol for poor digestion in old age. Number 1, pericardium 6 and the pericardium 8. Then stomach 25, stomach 36, stomach 44, CB6, CB10, CB12, CB13. Navel, moxa. Vitamin points around navel. All points even method. सारे पॉइंट को even method करना है. If the person is very weak, very weak, and very weak, no energy, then we can do tonification on all the point. तो हम सारे के सारे पॉइंट पर टोनिफिकेशन कर सकते हैं. We can do this treatment once in 7 days or once in 10 days. But initially even we can give the treatment 3 days a week, and after 12 sitting or 15 sitting, we can come on this mode that once a week. Now, if you are giving very frequent sitting, then use stomach 44 occasionally, not always. Otherwise, it will create tiredness. Remember? तो हमने बात कही है कि आपको इस प्रोटोकॉल को लगाना होगा, नाभि पर मोक्सा करना होगा, नाभि के चारों तरफ के विटामिन पॉइंट देना होंगे और सारे पॉइंट पर इवन मेथड करना है. लेकिन व्यक्ति बहुत ही कमजोर है तो आप टोनिफिकेशन करिए. और पहले आप शुरुआत में 3 दिन, वीक में 3 दिन ट्रीटमेंट दे दो, 12-15 सिटिंग हो जाए, फिर उसको एक सिटिंग 7 दिन में या 10 दिन में दीजिए. अगर आप किसी व्यक्ति को बहुत फ्रीक्वेंट सिटिंग दे रहे हैं तो स्टमक 44 का हर रोज प्रयोग मत करिए, कभी कभी करिए, ऑकेशनली करिए, नहीं तो ये बहुत कमजोरी पैदा कर देगा. हमने देखा है कि स्टमक 44 का ज्यादा प्रयोग करने से कमजोरी आ जाती है.
भले ही डिजिटल पॉइंट एक बहुत अच्छा बिंदु है, लेकिन एक्सेसिव यूज क्रिएट वीकनेस। तो ध्यान रखिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा भाई वीकनेस क्यों आ रही है। रही बात ये कि अगर किसी का बीपी हाई है तब भी हम मॉक्सिवेशन कर सकते हैं। हाई बीपी में मॉक्सिवेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है। मॉक्सिवेशन इज नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द हाई बीपी, बट moxibustion on the governing vessel 4, on the governing vessel 14, on the governing vessel 20, on the points who are increasing the yang is contraindicated. तो कोई बीपी में कोई मॉक्सिबेशन मना नहीं है। मना क्या है कि उन बिंदुओं पर मॉक्सा करना मना है जो यांग को रेज करते हैं। ठीक है जी, मॉक्सिबेशन तो करना चाहिए, वो बुढ़ापे में आप मॉक्सिबेशन तो करिए, बिकॉज यू हैव टू डू द मॉक्सिबेशन। Regarding the fatty liver, it will be discussed separately. Fatty liver is a different condition, but liver 3 is the very good point for the fatty liver, right? If you have any question, you have to put in the chat box. अगर आपका कोई प्रश्न है, आपको chat box में लिखना होगा. You have to write in the chat box. Okay, if any questions is there. Okay. So now I will see the chat box. CV10 used or missed? Yes, CV10. We have to use CV10. I have written or not? लिखा है मैंने, CV10 लिखा है ना, CV6, CV10, CV12, CV13. I have written. CV10 क्या करता है कि CV देखो, अब चलो आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ। वैसे हर पॉइंट की एक कहानी होती है ना। कभी कभी हम क्या होता है, आज हमने 2 पॉइंट की कहानी बता दी, अगली क्लास में अगले पॉइंट की कहानी बता देंगे। अब आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ। आई विल टेल यू द स्टोरी बिहाइंड द CV10. सपोज दिस इज द CV10. Let's look at the CV10 here. So the CV10 point is very important. Why? 1 minute. ओके, जब तक मैं आपको बोल देता हूं, थोड़ी इसमें प्रॉब्लम हो रही है कि CV10 क्या करता है। CV10 is the Leo connecting point between SI and SP. SI and SP, आप ये समझिए कि CV10 पर पुलिस डिपार्टमेंट के 2 लोग मिलते हैं। So CV10 is the Leo meeting point of superintendent of police and the sub-inspector. Superintendent of the police and the sub-inspector means spleen and SI. So this is the CV10. This is the Leo connecting point of SP and SI. तो यहां पर 3 मेरिडियन का मिलन होता है, CV, SP and SI. SP is reducing the kapha or dampness. Small intestine reducing the pitta or heat. So when you are stimulating the CV10, it is reducing the kapha and pitta. Unwanted kapha and pitta will be taken care. आपके स्प्लीन और स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन को सुधारता है और पाचन को ठीक करता है, फालतू का कचरा निकालता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है। इस तरह से CV10 काम करता है। CV10 is the very good point for improving the digestion. It will balance the spleen as well as the small intestine.
हमारे शरीर के कुछ वाइटल पार्ट्स होते हैं जैसे कि पेनिस, वेजाइना, नाभि, इन पर कभी निडल नहीं, निपल, इन पर कभी भी निडल नहीं लगाते, दे आर द कॉन्ट्राइंडिकेटेड। यहां पर अगर निडल लगा दी तो आयुर्वेद में तो कहते हैं मर्माघात, व्यक्ति की जान भी जा सकती है, बिकॉज दीज आर द वाइटल पॉइंट्स एंड हैविंग too much energies. So never try to put the needle on the navel region. नाभि पर कभी भी निडल लगाने की मत सोचिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता देता हूं, कल फेस्टिवल है, कल हमारी क्लास नहीं होगी, हमारी अगली क्लास मंडे से होगी। द नेक्स्ट क्लास विल बी मंडे ऑनवर्ड्स, and the Monday onwards we will having class only for enrolled participants. Now free session will end today, and if anyone want to continue can enroll. Okay, तो मंडे से हमारी जो क्लास होगी वो केवल इनरोल पार्टिसिपेंट के लिए होगी। आज हमारी फ्री क्लास का आखिरी दिन है और कल की छुट्टी रहेगी। ओल्ड एज, ओल्ड एज का मतलब है 50 साल के ऊपर, आप ओल्ड एज समझ सकते हो। जब हमारी उम्र एवरेज एज इज 70 ईयर्स, सो द ओल्ड एज मींस 50 प्लस। ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर की क्लास 17 जनवरी से स्टार्ट होगी, 17 जनवरी से। जिन लोगों ने इनरोल किया उनको तो सारे वीडियो दिए जाएंगे, केवल मंडे ट्यूसडे का नहीं, हर एक वीडियो उनको दिया जाएगा। आप भले ही आपको लगता है कि आप ओल्ड नहीं हैं, लेकिन अगर आपकी उम्र 45 के ऊपर हो गई है, अगर आप फीमेल है और आपकी उम्र 45 के ऊपर हो गई है, तो अपनी उम्र को मेंटेन बना के रखिए ताकि 100 साल तक आप पेशेंट को ट्रीट करते रहें बिना किसी प्रॉब्लम के। एक्सेस के लिए आप मुझे मैसेज करिए। वैसे वरुण जी आपको मैंने दे दिया एक्सेस, फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप मुझे मैसेज करिए। मोनिका जी आपका प्रश्न कहाँ है? मोनिका जी, ओल्ड एज 3 ग्राम 6 ग्राम 2 times during the lectures regarding physician number 4 has told not to moxibustion on CV6। हाँ, मॉक्सिबेशन नहीं करना है CV6 पर बीपी में, वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड, तो उसे छोड़ देना होगा आपको। मैंने ये बोला कि मॉक्सिबेशन इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड, बट द मॉक्सिबेशन ऑन द सर्टेन पॉइंट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द बीपी। तो आप ध्यान रखिए उन पॉइंट्स को। लिवर 3 पेनफुल मीन्स लिवर 3 इज मोस्ट ऑफ द टाइम पेनफुल फॉर ऑल एवरीवन। अगर व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल है तो आप उसे वीक में एक बार जरूर ट्रीटमेंट दीजिए और कम से कम उसे आप 15 to 20 सिटिंग्स जरूर दीजिए। हाउ टू कीप फूड व्हाइल लोकेटिंग द पॉइंट्स, राइट, दिस इज अ क्वेश्चन मोनिका जी। हाउ टू कीप फूड व्हाइल लोकेटिंग द लोकेशन ऑफ पॉइंट्स, ऐसा कुछ भी नहीं, आप किसी भी पोजीशन में रखिए। It depends on the points whether you are searching the medial side point, lateral side point, because sometimes patient is sitting, sometimes patient is lying down, so we should know how to search the point in every position। लंप सुजोग में भी मिलेगा, अगर बॉडी में मिलेगा तो सुजोग में भी मिलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, डेफिनेटली यू विल फाइंड। पेरिकार्डियम 8 की लोकेशन में बता देता हूं, श्योर आई विल टेल यू नाउ। या पेरिकार्डियम 8 आई विल टेल यू, बताता हूं। या डेफिनेटली वी विल सी ऑल द प्रोटोकॉल इन द सुजोग, हम सुजोग के सारे पॉइंट देखेंगे। We will see all the protocol in the sujok and you can transfer each and every point in the sujok, so do not worry for that. If you don't want to treat in the body, you can treat in the sujok। मार सुदर्शन घनबटी, आप एडल्ट हैं तो 3 गोली 3 बार भी ले सकते हैं,
और इन जनरल अगर आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 2 गोली 2 बार। स्टमक 44 पेनफुल का मतलब है कि पेट में कुछ गड़बड़ हो सकती है, बिकॉज स्टमक और नॉट ओनली स्टमक, पेट में स्टमक 44 इज द डिस्टल पॉइंट ऑफ फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। Yeah, definitely we can put the pericardium 6 for the high BP, but we have to set it. We have to set it. For the water reduction, Li4, Lu7. Li4, Lu7. Okay, now I will tell you the location of pericardium 8, then we'll conclude the session of today. फिर आज का सेशन हम समाप्त करेंगे, फिर हम मिलेंगे मंडे को। लेट्स सी नाउ। तो देखिए कि पेरिकार्डियम 8 कहां होता है, वेयर इज द पेरिकार्डियम 8। तो अगर हम अपनी उंगलियों को मोड़ते हैं तो जहां पर हमारी मिडिल फिंगर हथेली को टच करती है वो पेरिकार्डियम 8 है। इफ यू आर टर्निंग द फिंगर्स, सो वेयर माय मिडिल फिंगर टचिंग द palm, that is pericardium 8. Now this is the bone, this is the metacarpal bone, and this is also the metacarpal bone. So this is the metacarpal bone below the index finger, this is the metacarpal bone below the middle finger, and in between these two bone we are having gap. तो ये हमारी इंडेक्स फिंगर की मेटाकार्पल बोन है, ये हमारी मिडिल फिंगर की मेटाकार्पल बोन है, और इन दोनों के बीच में एक गैप है। इस गैप में पेरिकार्डियम 8 पाया जाता है। सो द पेरिकार्डियम 8 लोकेटेड इन दिस गैप। So if I turn my finger and I am keeping in this gap, so this is the location of pericardium 8 here. ये हमारा pericardium 8 है। This is the pericardium 8, right? जब कोई व्यक्ति मुट्ठी बांधे, when the person is making the fist and having too much pain, when the person is making the fist and having too much pain, it means there is excessive energy in the pericardium. अगर कोई व्यक्ति मुट्ठी को बंद करता है और उसे दर्द होता है, इसका मतलब है कि पेरिकार्डियम में एनर्जी बढ़ गई है। ये सब कुछ हम डायग्नोसिस के माध्यम से करते हैं। तल हृदय मर्मा तो यहाँ होता है। तल हृदय मर्मा इज इन द सेंटर, दैट इज इन द सेंटर। ओके, पेरिकार्डियम 8, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम टीसीएम की बात करते हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द डॉक्टर बोल, तो थोड़ा थोड़ा पोजीशन इधर उधर हो जाती है ना। मास्टर टुंग के अनुसार तो पूरे मेरिडियन में आप कहीं भी पॉइंट लगा दो, चाहे पेरिकार्डियम 7 पर लगा दो, चाहे पेरिकार्डियम 8 पर लगा दो, या इन दोनों के बीच में लाइन पर कहीं भी लगा दो, लेकिन लाइन पर लगाओ, है ना। तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। ओके, सो एंजॉय मकर संक्रांति इन एंड improve your digestion and have the तिल लड्डू for sure। तिल के लड्डू जरूर खाइएगा, क्योंकि तिल के लड्डू हमारे ब्रेन को, स्पाइन को मजबूत बनाते हैं, हमारे शरीर की स्टैग्नेशन और स्टेसिस को दूर करते हैं। तिल के लड्डू स्टेसिस, स्टैग्नेशन को दूर करते हैं, इवन मेटास्टेसिस यानी कैंसर को भी ठीक करते हैं। So the til laddu, whether the black til or the white til, they are the wonderful for stagnation, stasis, and even the metastasis. So eat til laddu, but in the small quantity, otherwise you will suffer with acidity. Okay, so enjoy this 7 days with til laddu। 7-8 दिन तिल के लड्डू जरूर खाना, ताकि आपके शरीर का फालतू का कफ, टर्बिडिटी और स्टैग्नेशन निकल जाए। ठीक है, अगर आप पास में होते तो हम आपको बना के खिलाते, लेकिन आप लोग दूर दूर हैं तो वो संभव नहीं है ना। तो अपने अपने घर पे बना के खाइए और बहुत अच्छे बन जाएं तो एक फोटो खींच के भेज दीजिए ग्रुप में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट। अब हम मिलेंगे मंडे को, सी यू ऑन मंडे। कैसे बनाए वो वी विल डिस्कस, आई एम गोइंग टू डिस्कस इन माय आयुर्वेदा क्लास ऑन द सैटरडे हाउ टू मेक तिल लड्डू। ओके, थैंक यू सो मच। Closing the session now.